students, Assalamu alaikum. Hope you must be well at your homes. Due to COVID, we are starting our online classes. Now we will start where we have left in the university. During the university, we have completed almost 3 chapters, but I'll start with the 3rd chapter, but with a little bit change. We have discussed simplex method in the class, but that was with the 2 variables. Over here we will discuss the same simplex method just for sake of your revision purpose, but I will go with the 3 variables because in the class we have discussed simplex method with the 2 variables, and I told you that why we are using the simplex method when we have another previously linear programming technique, the graphical method. The basic difference was or is that graphical method is suitable only up to the 2 variables. What if we have more than 2 variables? It can be 3 or any number of the variables. For that problem cannot be solved by the graphical method. Then we have to switch over to this simplex method. What is the number limit for this simplex method? Number of variables. There is no limit for number of variables in simplex method. This can be solved with any number of variables. No doubt the size of the problem will increase as the number of variable increases. So now I'll revise steps which we have already done, though I'm not supposed to, but because due to a lot of gap I have to do this one for your convenience. So now just concentrate on the board. That problem is already on your board. Simplex method, that is objective function maximize z is equal to 20x1 plus 10x2 plus 15x3 subject to the constraints 3x1 plus 2x2 plus 5x3 less than or equal to 55, 2x1 plus x2 plus x3 less than or equal to 26, x1 plus x2 plus 3x3 less than or equal to 30, 5x1 plus 2x2 plus 4x3 less than or equal to 57, and x1, x2, x3 are greater than or equal to 0. I have told you that there are 3 components of the linear programming model. First one is your objective function, that is the target of the problem. That is the goal of the problem we have to achieve. Then from here to this area, you can say this is second component. This is you are subject to the constraints. Constraints means the limitations, the boundaries that have been developed. It may be regarding your supply and demand, because if these limits are not fixed, then ultimately it will be infinite. If the constraints are infinite, ultimately your objective value will be infinite. So that's why boundaries are necessary. Then your third one portion or part of the LP model is non-negativity. This is ये नॉन नेगेटिविटी क्या है, मैंने क्लास के अंदर डिस्कस भी किया था, लेकिन फिर भी यहाँ आप लोगों के रिवीजन के लिए मैं डिस्कस किए देता हूँ कि ये वेरिएबल्स एक्चुअल में हैं क्या. ये वेरिएबल्स या आपके रिप्रेजेंट करते हैं किसी कमोडिटी को, किसी प्रोडक्ट को, मैन को, मशीन को, किसी को भी कह लें कि ये रिप्रेजेंट करते हैं. तो अब हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये कोई प्रोडक्ट्स हैं, x1, x2, x3, ये 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं. तो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर, चाहे फैक्ट्री के अंदर, जब आप प्रोडक्शन करते हो तो कभी भी आप ये नहीं बोलोगे कि हमने -6 आइटम्स प्रोड्यूस किए या मैन्युफैक्चर किए. नेवर एट ऑल. या तो आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो. अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं हम, तो इसका मकसद है कि कोई ना कोई वो पॉजिटिव नंबर होगा. अगर नहीं कर रहे हैं तो वो 0 होगा. आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि मैन्युफैक्चरिंग नेगेटिव हो रही है. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड नॉन नेगेटिविटी. इसीलिए इन सब वेरिएबल्स को हम ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या तो वो पॉजिटिव होगी उनकी वैल्यू या वो 0 होगा, नथिंग एल्स. नाउ सिंप्लेक्स मेथड का पहला स्टेप एक अगर आप लोगों को याद हो तो वो था कि हम इसको कन्वर्ट करते हैं स्टैंडर्ड एलपी मॉडल के अंदर. तो स्टैंडर्ड एलपी मॉडल, इसके अंदर हम कर क्या रहे थे, हम सिंपली इन इनइक्वालिटीज को रिप्लेस कर रहे थे इक्वल टू के साथ, और वो भी
अलजेब्रिक रूल के तहत, और वो मैंने आपको एग्जांपल दी थी आप ही की फील्ड के साथ, क्योंकि प्योर मैथमेटिक्स नहीं है तो मैंने आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का एग्जांपल देकर ये पूरी चीज़ क्लियर की थी कि जैसे लेस देन होगा तो वहाँ पर हम वेरिएबल ऐड कर रहे हैं और उस वेरिएबल को हम कहते हैं स्लैक वेरिएबल। क्यों करते हैं वो मैंने आपको समझा दिया था इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एग्जांपल देकर। और अगर यहाँ इनइक्वालिटी आपकी ग्रेटर देन है तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं वेरिएबल, और उस सब्ट्रैक्शन वाले वेरिएबल को हम कहते हैं सरप्लस वेरिएबल। तो इसलिए इसके ऊपर मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा, ये चीज़ें आपको पहले से पता हैं, इनके स्टेप्स ज़रूरी हैं जो मुझे यहाँ डिस्कस करने हैं। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज z। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हम क्या करते हैं कि जितने भी वेरिएबल्स हैं वो लेफ्ट साइड को ट्रांसशिफ्ट करके आते हैं। सो -20x1 -10x2 -15x3 हो जाएगा, और राइट साइड का पर आ जाएगा आपका 0। देन सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स में फर्स्ट कंस्ट्रेंट है आपके पास 3x1 + 2x2 + 5x3 + s1 = 55। ये प्लस s1 आएगा क्योंकि हमने इनइक्वालिटी हटाई तो हम वेरिएबल एक ऐड कर देंगे। इसी तरह से बाकी कंस्टेंट्स के अंदर भी आप 2x1 + x2 + x3 + s2 = 26। Then third one constraints x1 + x2 + 3x3 + s3 = 30. The fourth constraint 5x1 + 2x2 + 4x3 + s4 = 57. And x1, x2, x3, s1, s2, s3, s4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये जितने भी आपने स्लैक या सरप्लस वेरिएबल इंट्रोड्यूस किए होते हैं स्टैंडर्ड एलपी मॉडल के अंदर, वो भी आपके पार्ट हो जाएगा नॉन नेगेटिविटी का। इसीलिए ये सब के सब वेरिएबल आ गए आपके यहाँ पर। सो दिस इज वेरी फर्स्ट स्टेप रिगार्डिंग योर सिंप्लेक्स मेथड कि हमने अपने मॉडल को स्टैंडर्ड एलपी मॉडल में, स्टैंडर्ड लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारा है वो आता है आपका स्टार्टिंग बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन या इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन। स्टार्टिंग बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन। अब ये फीजिबल वर्ड की मीनिंग अगर आप देखेंगे, या आप लोग काफ़ी सब्जेक्ट्स में पढ़ चुके होंगे नीचे, एंटरप्रेन्योरशिप में, मैनेजमेंट के अंदर, या इवन स्वॉट एनालिसिस मार्केटिंग के अंदर किया होगा आप लोगों ने, तो वहाँ पर हम एक कहते हैं कि फीजिबल रिपोर्ट बनाना। तो मेरा काम फीजिबल रिपोर्ट नहीं है, लेकिन मैं सिंपली फीजिबल की मीनिंग के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। फीजिबल मीन्स के मुमकिन, जो डूएबल हो, अचीवेबल हो। तो स्टार्टिंग बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन हम उसे कह रहे हैं। अब ये कैसे मालूम होता है, उसके लिए सिंपल एक फार्मूला मैंने आपको बताया था कि बाय सेटिंग n - m वेरिएबल्स इक्वल टू 0, यानी हम n - m वेरिएबल्स बराबर करेंगे 0 के। अब ये n क्या है और m क्या है? n इज टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो कि हमारे पास हैं इस वक्त 7 कैसे? क्योंकि 3 तो हमारे पास डिसीजन वेरिएबल्स थे, 4 हमारे पास ये स्लैक वेरिएबल आ गए, तो टोटल जो नॉन नेगेटिविटी के अंदर वेरिएबल्स हैं वो 7 है। सो n इज टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स, दैट इज इक्वल टू 7। व्हाट इज m? m इज टोटल नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स कितने हमारे पास? 1 2 3 4, 4 कंस्ट्रेंट्स हैं, यानी ये हो गए आपके n कंस्ट्रेंट 4। अब बाय सेटिंग n - m वेरिएबल्स इक्वल टू 0, यानी 7 - 4 इज इक्वल टू 3 वेरिएबल्स विल बी इक्वल टू 0। 3 वेरिएबल्स
विल इक्वल टू 0। अब ये कौन से वेरिएबल होंगे? 7 वेरिएबल्स हैं, 7 में से 7 में से कौन से वेरिएबल हम 0 करेंगे? आई टोल्ड यू कि हमेशा हम फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं डिसीजन वेरिएबल्स को। डिसीजन वेरिएबल्स क्या होते हैं? वो वेरिएबल्स जो हमारे ओरिजिनल मैथमेटिकल मॉडल के अंदर है, यानी हम स्लैक और सरप्लस को नहीं काउंट करेंगे। ओरिजिनल वेरिएबल हो जाएंगे हमारे, या डिसीजन वेरिएबल जो स्लैक और सरप्लस के से हटकर हमारे प्रॉब्लम में थे। तो यहां 3 है और हमारे पास एक्चुअल में डिसीजन वेरिएबल्स भी 3 ही थे प्रॉब्लम के अंदर, x1 x2 x3। तो हम सीधा सीधा यही रखेंगे कि x1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 0 और x3 इज इक्वल टू 0। अब इनको हम नाम दे देते हैं नॉन बेसिक वेरिएबल का, नॉन बेसिक वेरिएबल्स। सीधा सीधे अगर हम कहें कि नॉन बेसिक वेरिएबल की डेफिनेशन क्या होगी? द वेरिएबल्स व्हिच आर इनिशियली असाइंड 0 वैल्यू आर नोन एज योर नॉन बेसिक वेरिएबल्स। तो बाकी जो वेरिएबल्स हमारे पास इस प्रॉब्लम के अंदर, पर्टिकुलरली मैं इस प्रॉब्लम की बात करूंगा, नॉट ऑलवेज, कि वो हम S1, S2, S3 और S4, इनको हम कहेंगे बेसिक वेरिएबल्स। अब बेसिक वेरिएबल की डेफिनेशन क्या है? द वेरिएबल्स हैविंग यूनिट कोएफिशिएंट इन वन इक्वेशन एंड 0 इन अदर्स आर नोन एज बेसिक वेरिएबल्स। मकसद क्या हुआ कि वो वेरिएबल जिनका कोएफिशिएंट 1 हो, यूनिट मींस 1, एक कोएफिशिएंट हो किसी भी एक इक्वेशन में और बाकी में 0 हो। तो अगर हम कंसंट्रेट करें S1, S2, S3 और S4 के ऊपर, तो अगर हम यहां आ जाएं तो S1 सिर्फ इसी इक्वेशन फर्स्ट कंस्ट्रेंट में मौजूद है, बाकी में मौजूद नहीं है, और S1 का कोएफिशिएंट यहां नहीं है लिखा हुआ। इसका मकसद है कि ये 1 है और बाकी में 0 है। इसी तरह से S2 का कोएफिशिएंट सिर्फ यहां पर 1 है, बाकी में ये अनअवेलेबल है, इस वजह से वो 0 हुआ। सो लुकिंग एट ऑल दीज वेरिएबल्स S1, S2, S3, S4, all are qualifying the definition of basic variable. That's why these all are known as your basic variables. अब हम स्टार्टिंग बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि इस स्टेप से हमें असर्टेन होगा कि इस प्रॉब्लम का डायरेक्ट सॉल्यूशन है या नहीं है। डायरेक्ट का मकसद कि हम डायरेक्टली सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे, और अगर नहीं हो रहा ये स्टेप किसी पर्पस के लिए, जिस पर्पस के लिए बनाया गया है, तो फिर ये हम नहीं कह सकते कि इसका सॉल्यूशन नहीं है। फिर हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने पड़ेंगे ताकि हम सॉल्यूशन की तरफ जाएं। तो लेट्स सी कि हम क्या करना चाह रहे हैं इसके अंदर। तो बेसिकली ये जो स्टेप आपका स्टार्टिंग बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन है, ये आपके इस नॉन नेगेटिविटी को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर हमारी नॉन नेगेटिविटी सेटिस्फाई हो गई तो इसका मकसद है कि इस प्रॉब्लम का हमारे पास सॉल्यूशन डायरेक्ट है, हम आगे जाएंगे। सो लेट्स सी कि कैसे। कि हम कह रहे हैं कि x1, x2, x3 ये सब जीरोस हैं, तो x1, x2, x3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, या 0 होना चाहिए हर वेरिएबल या ग्रेटर देन। तो x1, x2, x3 0 हो गए, यानी x1, x2, x3 की नॉन नेगेटिविटी प्रूव हो गई, क्योंकि वो 0 के बराबर है। इसी तरह से फिर आ जाए हम S1, S2, S3 और S4 के लिए। तो S1 वेरिएबल हमारा यहां पड़ा हुआ है। अब हमने x1, x2, x3 की वैल्यू ऑलरेडी असाइन की हुई है कि वो 0 हैं। अगर हमने x1, x2, x3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की पहले कंस्टेंट के अंदर, S1 इक्वेशन के अंदर, तो ये कंप्लीटली यहां तक हो जाएगा 0, और ये S1 इज इक्वल टू 55। तो S1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 55, जो पॉजिटिव है यानी ग्रेटर देन 0 है। वो आप यानी कह सकते हैं कि आपकी नॉन नेगेटिविटी S1 की भी प्रूव हो गई। इसी तरह से S2 आपका 26 हो जाएगा, S3 30, S4 57। क्यों? क्योंकि जो बाकी चीजें हैं वो 0 हो जाएंगी, बिकॉज x1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 0 एंड x3 इज इक्वल टू 0 की वजह से। तो ये नॉन नेगेटिविटी हमारी सब वेरिएबल्स की प्रूव हो चुकी है। तो हम कहेंगे कि अब इसका हमारे पास डायरेक्ट सॉल्यूशन है, हम सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे प्रॉब्लम की। तो दिस इज सेकेंड स्टेप। अब मैं, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्डिंग है, आपके पास है,
कहीं भी पास करके आप लोग ये नोट कर सकते हैं, तो यहाँ वेट करने की ज़रूरत नहीं है मुझे कि मैं बोर्ड को इरेज ना करूँ या आप नोट करते जाएं। नाउ अब हमें क्या करना है कि हमें इस चीज़ को पूरे को टेबुलर फॉर्म में रखना है। मुझे ऊपर वाली चीज़ ही जो है इसके आपका लिखा हुआ वही रिमूव करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से अभी हमें काम है। लेकिन सिंपली ये याद रखेंगे S1, S2, S3, S4 हमारे बेसिक वेरिएबल्स हैं, 4 बेसिक वेरिएबल्स हैं। अब टेबल में क्या आएगा? आई टोल्ड यू इन द क्लास के फर्स्ट कॉलम हमेशा आएगा बेसिक का, बाकी बीच में क्या आएगा कि आपके जितने भी वेरिएबल्स थे x1, x2, x3, s1, s2, s3, s4 और फाइनली आ जाएगा आपका सॉल्यूशन कॉलम। हमेशा पहला और आखिरी कॉलम यही रहता है कि बेसिक और सॉल्यूशन, बाकी इन बिटवीन इन दो कॉलम्स के जितने भी वेरिएबल्स हमारे नॉन नेगेटिविटी के अंदर थे वो हमने यहां रख दिए हैं। अब हमें करना क्या है कि यहाँ हम सबसे पहले लिखेंगे z इक्वेशन। z इक्वेशन यानी ऑब्जेक्टिव इक्वेशन आपकी। यहाँ x1 का कोएफिशिएंट क्या है? -20। आप x1 के नीचे -20 रख देंगे। x2 का कोएफिशिएंट क्या है? -10। आप x2 के नीचे -10 रख देंगे। x3 का कोएफिशिएंट है -15, आप -15 रख देंगे। S1, S2, S3, S4 अवेलेबल ही नहीं है, यानी वो आपके हो जाएंगे 0। नाउ व्हाट इज सॉल्यूशन कॉलम? सॉल्यूशन ए कॉलम इज एक्चुअली द राइट हैंड साइड ऑफ ईच इक्वेशन। राइट हैंड साइड ऑफ ईच इक्वेशन, तो इक्वल टू के बाद जो वैल्यू है राइट हैंड साइड वो है 0, यानी सॉल्यूशन वैल्यू हो गई आपकी यहाँ 0। फिर हमने डिसाइड किया था कि हमारे पास S1, S2, S3 और S4 बेसिक वेरिएबल्स हैं, इसीलिए ये बेसिक का हेडिंग दिया कि यहाँ बेसिक वेरिएबल्स आएंगे। S1 की इक्वेशन आपके पास ये पड़ी हुई है। यहां से आप कोएफिशिएंट हर वेरिएबल के लिखोगे S1 के सामने। तो x1 का कोएफिशिएंट है 3, x2 का कोएफिशिएंट है 2, x3 का कोएफिशिएंट है 5, s1 का कोएफिशिएंट है 1, s2, s3, s4 हमारे s1 में नहीं है इक्वेशन में, दैट्स व्हाई ऑल 3 राइट हैंड साइड क्या है 55, इट विल गो इनटू द सॉल्यूशन कॉलम। देन S2 इक्वेशन आपकी ये है, तो यहां से ये 2, देन 1, x3 का कोएफिशिएंट, s1 नहीं है वो 0, s2 कोएफिशिएंट 1 होगा, s3 और s4 0 है, राइट हैंड साइड इज 26। देन s3 इसी तरह से हम 1, 1, 3 यानी x1 1, x2 1, x3 का कोएफिशिएंट 3 है, s1, s2 नहीं है वो 0, s3 का कोएफिशिएंट 1, s4 का कोएफिशिएंट 0 एंड राइट हैंड साइड इज 30। देन s4 में हम आ जाएं तो ये 5, x1 का कोएफिशिएंट, x2 का कोएफिशिएंट 2, x3 का कोएफिशिएंट 4, s1, s2, s3 0 है, s4 का कोएफिशिएंट 1, राइट हैंड साइड इज 57। तो ये आपका इनिशियल टेबल बन गया। नाउ जो हमने स्टार्टिंग बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन मालूम किया था, एक पर्पस तो ये था कि नॉन नेगेटिविटी सेटिस्फाई हो जाए, कि हमें पता चले कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है कि नहीं है। दूसरा ये मकसद था कि हम लोग डिटरमिन करते हैं कि हमारे प्रॉब्लम में बेसिक वेरिएबल्स कितने होंगे। तो वहाँ हमने डिसाइड किया कि 4 वेरिएबल्स हैं, तो वो हमने 4 यहाँ रख दिए। अब थ्रू आउट द प्रॉब्लम यहाँ से लेकर टिल एंड जैसे जैसे हम जाएंगे सॉल्यूशन की तरफ, तो हमें ये लिस्ट 4 वेरिएबल्स की ही यहाँ मेंटेन करनी है, यानी 4 वेरिएबल ही बेसिक के अंदर होंगे, ना इससे कम होंगे ना इससे ज्यादा होंगे, तो ही हमारा सॉल्यूशन होगा। अब हमें करना क्या है, इस पूरे सिंप्लेक्स मेथड की जो थीम है, जो सिस्टम है, जो सॉल्यूशन का वे है, वो ये है कि हमें इन वेरिएबल्स को यहाँ पर ले आना है, लेकिन किसी रूल के तहत। इसे हम कहते हैं एंटरिंग कॉलम, यानी हम यहाँ से कोई एक वेरिएबल किसी रूल के तहत उठाएंगे और वो यहाँ एंटर कर देंगे, इसीलिए हम इसे कहते हैं कि ये एंटरिंग कॉलम।
तो अब एंटरिंग कॉलम की डेफिनेशन मैंने क्लास में भी लिखवाई थी, नहीं है तो ठीक है, मसला नहीं है, याद नहीं है तो यहाँ रिवीजन कर रहे हैं। वो यही है कि एंटरिंग कॉलम, if the problem is of maximization, if your objective function is of maximization, then the most negative value in z equation is your entering column। क्योंकि ये प्रॉब्लम हमारा या ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन का है, इसीलिए हमें मोस्ट नेगेटिव वैल्यू इन z इक्वेशन देखनी पड़ेगी। तो -20, -10, -15 में से मोस्ट नेगेटिव वैल्यू हमारी है -20 यानी x1। तो ये x1 हमारा हो जाएगा एंटरिंग कॉलम बेसिकली। ठीक, अब अगर हमने x1 एंटर किया तो हमारे पास बेसिक में तो फिर 5 वेरिएबल्स हो जाएंगे, जबकि हमें मेंटेन करने हैं 4। तो जरूरी है कि अगर हम यहां से एक वेरिएबल उठाकर यहां एंटर कर रहे हैं किसी रूल के तहत, तो उसी हिसाब से हमें अब यहां से एक वेरिएबल फिर रिलीव करना पड़ेगा, लीव करना पड़ेगा। उसे हम कहते हैं लीविंग वेरिएबल। तो लीविंग वेरिएबल भी किसी रूल के तहत, ऐसा नहीं कि हम 4 में से कोई भी वेरिएबल लीव करवा सके, नो, नॉट एट ऑल, हमें किसी रूल के तहत। और वो रूल क्या है कि लीविंग वेरिएबल की डेफिनेशन में बोल रहा हूं कि इट्स द स्मॉलेस्ट रेशो, it is the smallest ratio solution to entering column, that is known as your leaving variable। यानी हमें करना क्या है कि सॉल्यूशन की वैल्यू को डिवाइड करना है एंटरिंग की वैल्यू से, फिर जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी वही हमारा लीविंग वेरिएबल होगा। सो जस्ट से कि हम यहां सिंप्लीफाई कर रहे हैं कि ये है 55 आपका सॉल्यूशन वैल्यू डिवाइडेड बाय एंटरिंग वैल्यू है इसकी 3। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 18.33। फिर इसी हिसाब से ये 26 है और इसकी एंटरिंग वैल्यू है 2, तो यानी 26 डिवाइडेड बाय 2, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1330। फिर ये है 30 सॉल्यूशन की वैल्यू डिवाइडेड बाय एंटरिंग कॉलम 1, सो इट विल बी 30 सेम। और ये है आपका 57 डिवाइडेड बाय एंटरिंग वैल्यू 5, तो इसका मकसद है कि ये वैल्यू हो जाएगी 11.4 आपकी, डिवाइड करेंगे तो अब रेशो मैंने कहा कि जो मिनिमम हो, फर्स्ट का रेशो है 18.33, सेकंड का 13, थर्ड का 30, फोर्थ का 11.4। सो आउट ऑफ दीज 4 रेशोज व्हिच वन इज मिनिमम? 11.4। 11.4 यानी आप मार्क करोगे कि ये S4 जो है आपकी लीविंग वेरिएबल कहलाएगा। ये आपका लीविंग वेरिएबल कहलाएगा। डन। अब हमें नेक्स्ट स्टेप के लिए जाना है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमें नेक्स्ट टेबल की तैयारी करनी है, लेकिन उसके लिए हमारे पास फार्मूले हैं। लेकिन उससे पहले मैं लीविंग वेरिएबल को थोड़ा सा फिर एलाबोरेशन करूंगा, क्योंकि आप लोगों को शायद याद हो या ना हो। तो मेरे लिए ज़रूरी है कि आप इस वक्त डिस्टेंट एरिया पर हैं, यानी फिजिकली नहीं हैं। वैसे क्या क्वेश्चन आंसर हो सकते थे या जो भी इशू होता था तो आप लोग आ जाते थे, लेकिन इस वक्त आप लोग दूर बैठे हुए हो, तो हो सकता है कि फिर आप लोग भूल गए हो जो मैंने बातें क्लास के अंदर कही थी। लीविंग वेरिएबल के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जब हम डिसीजन करते हैं लीविंग वेरिएबल के लिए, तो हम कह रहे हैं कि सॉल्यूशन टू एंटरिंग कॉलम रेशो, सॉल्यूशन टू एंटरिंग कॉलम का रेशो है। तो जहां जहां भी एंटरिंग कॉलम के अंदर 0 और नेगेटिव वैल्यू होगी उनका हम रेशो नहीं निकालेंगे, क्योंकि डिवीजन बाय 0 इन्फिनिटी हो जाएगा, इसलिए हमें उसको इग्नोर करना है। और बाकी एक चीज जो मैं कह रहा हूं कि नेगेटिव वैल्यू, जब भी हम किसी नेगेटिव वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, जो हमारी नॉन नेगेटिविटी को वायोलेट करेगी। इसीलिए हम नेगेटिव वैल्यू और जीरोस को इग्नोर करते हैं, उनका रेशो ही नहीं निकालते, उनका डिसीजन हम नहीं करते। लीविंग वेरिएबल के लिए उनको इंक्लूड ही नहीं करते, उनको कंसीडर ही नहीं करते हम। सो दिस इज व्हाट इज द पॉइंट। अब यहां से आगे हमें जाना है, तो हमें 2 फार्मूले हैं हमारे पास। नंबर 1 है आपका न्यू पिवट इक्वेशन इज इक्वल टू ओल्ड पिवट इक्वेशन डिवाइडेड बाय पिवट
एलिमेंट। न्यू पिवट इक्वेशन इज इक्वल टू ओल्ड पिवट इक्वेशन डिवाइडेड बाय पिवट एलिमेंट। अब पिवट मींस महवर, सेंट्रल, मेन, प्रिंसिपल। ओल्ड पिवट इक्वेशन क्या है आपका? बेसिकली ओल्ड पिवट इक्वेशन इज एन इक्वेशन ऑफ लीविंग वेरिएबल इक्वेशन, यानी जो आपने डिसाइड किया है कि ये लीविंग वेरिएबल है वो आपकी कहलाएगी ओल्ड पिवट इक्वेशन। व्हाट इज पिवट एलिमेंट? ये भी मैंने आपको क्लास के अंदर बताया था, लेकिन रिवीजन हो रही है, ठीक है। सो ओल्ड पिवट इक्वेशन का हो गया नाउ पिवट एलिमेंट। पिवट एलिमेंट इज बेसिकली एन इंटरसेक्शन ऑफ एंटरिंग कॉलम एंड लीविंग वेरिएबल। An intersection of entering column and leaving variable is known as your pivot element। तो ये कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को कट कर रहे हैं, एंटरिंग कॉलम और लीविंग वेरिएबल इस जगह पर, यानी ये 5 is known as your pivot element। 5 is known as your pivot element। अब हम न्यू पिवट इक्वेशन मालूम करेंगे, उसके लिए मैंने फार्मूला पहले ही लिखा हुआ है, ओल्ड पिवट इक्वेशन। तो ओल्ड पिवट इक्वेशन की ये वैल्यूज आप सब लिखोगे 5, 2, 4, 000, 1 एंड 57 डिवाइडेड बाय पिवट एलिमेंट। तो इसका मकसद है कि हर वैल्यू को आप इस पिवट एलिमेंट 5 से डिवाइड करोगे। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी ये 1, ये 2/5 ही रहेगा, ये 4/5, ये 0, ये 0, ये 0, ये 1/5, ये भी 55/7, क्योंकि कंप्लीटली कैंसिलेशन नहीं हो रही है तो आप इसको एज इट इज रखें। तो ये हो जाएगी आपकी न्यू पिवट इक्वेशन। ये हो गया आपका फार्मूला पहला, जिससे आप न्यू पिवट इक्वेशन मालूम करेंगे। सेकेंड है आपका फार्मूला, जिससे हम जो टेबल के अंदर जितने भी हमारी इक्वेशंस हैं Z, S1, S2, S3, इन सब की हमें न्यू वैल्यूज निकालनी है। S4 की हम नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे? क्योंकि S4 हमारा लीविंग वेरिएबल है। तो लीविंग वेरिएबल जब हम कह रहे हैं कि ये छोड़ जाएगा, आगे हम इसको नहीं रखेंगे। जब नहीं रखेंगे तो उसकी नई वैल्यूज मालूम करने की जरूरत ही नहीं है हमें। इसीलिए हम सिंपली आ जाएंगे कि न्यू फार्मूला पहले मैं लिख देता हूं, न्यू इक्वेशन इज इक्वल टू ओल्ड इक्वेशन माइनस इट्स एंटरिंग कॉलम कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय इस पूरे के साथ बाय न्यू पिवट इक्वेशन। ठीक, तो ओल्ड इक्वेशन माइनस इट्स एंटरिंग कॉलम कोएफिशिएंट इनटू न्यू पिवट इक्वेशन। अब न्यू इक्वेशन, यानी अगर हम न्यू Z इक्वेशन मालूम करेंगे तो यहां ओल्ड Z इक्वेशन रखेंगे। अगर हम ओल्ड न्यू S1 मालूम करनी है तो यहां हमें ओल्ड S1 इक्वेशन रखनी होगी। सो दिस इज करेस्पॉन्डिंग, जिसकी हम वैल्यूज मालूम कर रहे हैं इक्वेशन की, वही हम ओल्ड कंसीडर करते हुए रखते जाएंगे बारी बारी और इनको सॉल्व करते जाएंगे। यहां पर मैं आप लोगों के लिए सॉल्यूशन की तरफ आ रहा हूं कि पहले मैं न्यू Z इक्वेशन की तरफ जा रहा हूं। तो न्यू Z इक्वेशन इज इक्वल टू ओल्ड Z इक्वेशन। तो ओल्ड Z इक्वेशन आपके पास है -20, -10, -15, 5 टाइम्स 0, 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स 0 आ गया आपका। माइनस, ये फार्मूला में माइनस है, इट्स एंटरिंग कॉलम कोएफिशिएंट। इट्स एंटरिंग कॉलम कोएफिशिएंट मकसद के Z का एंटरिंग कॉलम कोएफिशिएंट। इट्स एंटरिंग कॉलम कोएफिशिएंट मींस Z का, क्योंकि जो इक्वेशन हम नहीं मालूम कर रहे हैं उसी में से ओल्ड में से एंटरिंग कॉलम हम लेंगे। तो एंटरिंग कॉलम कोएफिशिएंट है Z में -20, ठीक, मल्टीप्लाइड बाय न्यू पिवट इक्वेशन की वैल्यूज आपने पहले ही मालूम की हुई हैं। मैं यहां साइड पर लिख रहा हूं, ये लीजिए आपके कि 1, 2/5, 4/5, 0, 0, 0, 1/5 एंड 55/7। अब
माइनस माइनस ये हो जाएगा +20, +20 मल्टीप्लाइड बाय ईच एलिमेंट ऑफ न्यू पिवट इक्वेशन। तो ये हो जाएगा आपका 20, फिर हो जाएगा आपका 5 4 8, ये सिंपली 8 बचेगा, और फिर आपका ये आ जाएगा 4 4 16 हो जाएगा, फिर 3 टाइम्स 0, फिर आपका आ जाएगा सिंपली 4, और ये आ जाएगा आपका 20 इंटू 55 इंटू 55/7 के हिसाब से। तो 55 को अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करें तो 520 हो जाएगा आपका 100, और 55 से करें 20 इंटू 55 क्या हो जाएगा? यस, सो यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई एंड 55 इंटू 20, तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी। वो क्या होगी वैल्यू? मैं लिख रहा हूं, इसको ज़रा मिटा दूं। 55 इंटू 20 125, 1000 और समथिंग मेरे ख्याल में हो जाएगी। 1 मिनट मैं कैलकुलेट कर लूँ। 55 इंटू 55 इंटू क्या हो गया? 55 into 20, sorry, yeah, 50, because the last value of the new pivot equation is 55/7, तो 55 से हमें मल्टीप्लाई करने पड़ेगा क्योंकि ये 20 है यहाँ पर। तो 55 into 20 it will become equal to 1100 over 7, 1107 हो जाएगा आपके पास। ओके, नाउ सिंप्लीफिकेशन आप लोग करते जाएंगे इसकी, कि जो भी है, सॉरी यहाँ मैंने गलती से 5 लिखना है, मैंने 7 लिख दिया है, सॉरी। 57 का मैंने 7 और गलती कर दी है, सॉरी। तो अब हम दोबारा कैलकुलेट करेंगे, सॉरी ये 55 नहीं था, 57 इंटू 20, लेकिन ये 55 का 5 है, सॉरी फॉर दिस वन। 1 5 5 4 तो 4 इंटू 57 करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 228, सॉरी फॉर दिस वन, 228। तो ये 228 वैल्यू आपकी ये आ जाएगी। अब इनको सिंप्लीफाई करें आप, तो -20 + 20 0, -10 + 8 -2, -15 + 16 1 0 0 0 4, और ये 228 आ जाएगा। तो ये आ जाएगी आपकी न्यू Z इक्वेशन इज इक्वल टू दिस वन। अब इसी तरह से आप न्यू S1, न्यू S2 और न्यू S3 की हमें मालूम करनी है। तो मैं यहाँ ये आपने Z की लिख ली, देख ली, तो मैं यहाँ Z की वैल्यूज पुट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे नीचे स्पेस चाहिए, इस वजह से वो वैल्यूज फिर मैं कहीं नोट करता फिरूँ। तो मैं डायरेक्टली, आपको टेबल नया बनाना होगा, मैं यहीं पर लिख रहा हूँ कि ये 0, ये -2, ये +1, देन 000 4 और 228 आ जाएगा। ये S4 है, ये S3 है। नाउ अब हम नीचे ही फिर आ जाएंगे कि हमें एक इक्वेशन और मालूम करनी है, वो क्या है? वो आपकी है न्यू S1। तो न्यू S1 इज इक्वल टू ओल्ड S1। ओल्ड S1 हमारी क्या है? 3 2 5 1 000 एंड 55 माइनस इट्स एंटरिंग कॉलम कोएफिशिएंट। तो अब S1 का एंटरिंग कॉलम कोएफिशिएंट क्या है? 3 मल्टीप्लाइड बाय न्यू पिवट इक्वेशन। तो न्यू पिवट इक्वेशन आपके पास ये पड़ी हुई है, 1 2/5 4/5 000 1/5 and 57/5। नाउ ये माइनस इंटू प्लस
माइनस हो जाएगा -3 मल्टीप्लाइड बाय ईच एलिमेंट ऑफ न्यू पिवट इक्वेशन, तो ये हो जाएगा आपका -3 -6/5 देन -12/5 फिर 000 फिर -3/5 and it will become equal to 150 21 -171/5 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 57/5 सिंप्लीफाई करें वही थ्रू 3 - 3 0 10 10 - 6 यानी 4/5 हो जाएगी वैल्यू। ये हो जाएगा 25 यानी 13/5 हो जाएगी। ये 1 ये 0 0 ये -3/5, इनको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा आपका 250 275 में से 171 माइनस करें तो 104 होगा 104/5। तो ये वैल्यूज आपकी आ गई न्यू S1। न्यू S1 यहाँ आ गई, तो अब मैं S1 की वैल्यू यहां से रिमूव कर रहा हूं और न्यू S1 नए टेबल के हिसाब से मैं डाल रहा हूं, पुट कर रहा हूं 0 4/5 13/5 100 देन -3/5 और 10 सॉल्यूशन में 104/5। ये हो गई आपकी न्यू S1। फिर हम इसी तरह से न्यू S2, तो ये मैं रिमूव कर रहा हूं। न्यू S2 इज इक्वल टू ओल्ड S2। तो अब ओल्ड S2 में डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां 2 1 1 0 1 00 and 26 minus S2's entering column is 2 into new pivot equation की वैल्यू यहां से आप लेंगे 1 2/5 4/5 0 0 0 1/5 57/5। तो -2 हो जाएगा, ये वैल्यूज हो जाएंगी आपकी -2 -4/5 देन -8/5 then 0 0 0 -2/5 and it will become equal to 114 -114/5। सिंप्लीफाई करें दोबारा से 2 - 2 इट विल बी 0। ये हो जाएगा आपका 5 - 4 यानी 1/5 5 - 3 यानी -8 -3/5 0 1 0 ये -2/5 and 526 द 130 में से 114 यानी 16/5 आपका रिमेनिंग। तो न्यू S2 इज इक्वल टू दिस वन। ये आ गई न्यू S2 की वैल्यू। तो फिर यही न्यू S2 की वैल्यू आप यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे नए टेबल के अंदर बनाकर। S2 की वैल्यूज आ गई आपकी 0 1/5 -3/5 0 1 0 -2/5 and 16/5 S2। अब इसी तरह से न्यू S3 की वैल्यूज हमें मालूम करनी पड़ेगी। न्यू S3 इज इक्वल टू ओल्ड S3 1 1 3 00 10 30 माइनस इट्स एंटरिंग, इसका एंटरिंग S3 का है 1 इंटू न्यू पिवट इक्वेशन एज इट इज। सो ये -1 हो जाएगा, तो -1 -2/5 -4/5 0 0 0 -1/5 -57/5। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 0 ये हो जाएगा 3/5 ये 15 यानी 11/5 ये 0 ये 1 ये -1/5 530 का 150 में से -57 करेंगे तो 143 यानी 150 में से 50 93 बचेगा, तो 93/5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका न्यू
S3 इज इक्वल टू दिस वन। तो ये न्यू S3 की वैल्यूज भी आप यहाँ टेबल के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। न्यू S3 क्या आ गया? 0, 3/5, 11/5, 0, 0, 1, -1/5 एंड 93/5। अब S4 नहीं आएगा, हमने डिसाइड किया था कि X1 एंटरिंग है, तो यहां आ जाएगा X1। अब X1 की वैल्यूज कहां से आएंगी? X1 की वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करोगे, जो न्यू पिवट इक्वेशन की वैल्यूज हैं वो आप X1 को दे दोगे। तो न्यू पिवट इक्वेशन ये आपकी पड़ी हुई है 1, 2/5, 4/5, 000, 1/5 एंड 57/5। तो ये आपका बन गया पहला टेबल। के बाद आपका नेक्स्ट यानी हमने इसे चला दिया। नाउ दिस प्रोसेस इज रिपीटेटिव। ये प्रोसेस अब आपका रिपीटेशन है कि आप बार बार इस प्रोसेस को दोहराते रहोगे, इसीलिए मुझे अब आगे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये रिवीजन भी है आपकी। उसके बाद क्या स्टेप आएगा वो मैं आपको बता रहा हूं कि इसको कब तक चलाना है। ये तब तक चलता रहेगा जब तक एक भी नेगेटिव वैल्यू z इक्वेशन के अंदर मौजूद है। तो देखें यहां पर अभी पूरी z इक्वेशन में सिर्फ एक ही वैल्यू है -2x2 के लिए। तो आप जो खुद अब आपको सॉल्व करना है, इससे आगे मैं आपको बता रहा हूं, ये हो जाएगा आपका एंटरिंग कॉलम। आपके लिए सॉल्यूशन के लिए मैं थोड़ी हेल्प आउट कर देता हूं कि ये एंटरिंग कॉलम हो जाएगा। लीविंग वेरिएबल वही आप डिसाइड करोगे, सॉल्यूशन वैल्यू डिवाइडेड बाय एंटरिंग वैल्यू। तो जो स्मॉलेस्ट होगा इनमें सब में से, तो वो आपका फिर लीविंग वेरिएबल हो जाएगा। और उसके बाद फिर आप वही न्यू पिवट इक्वेशन मालूम करोगे पहले, फिर न्यू Z, न्यू S1, न्यू S2, न्यू S3 या जो भी इनमें से लीविंग होगा उनकी नहीं मालूम करोगे, बाकी सबकी सब करनी पड़ेगी। तो ये प्रोसेस रिपीटेटिव है, आपको रिपीट करना पड़ेगा टिल कोई भी वैल्यू Z के अंदर नेगेटिव ना हो, यानी या सब 0 हो चुकी हैं होंगी या सब पॉजिटिव रही होंगी। तब जाकर हम कहेंगे कि ये हम अपने ऑप्टिमम सॉल्यूशन, मैक्सिमम सॉल्यूशन के ऊपर पहुंच चुके हैं। तो अगर आप थोड़ा कंसंट्रेट करें कि प्रीवियस टेबल के अंदर Z की वैल्यू क्या थी 228, 0, तो अब हमारे पास क्या है 228। देखें कि हमें ये प्रॉब्लम था मैक्सिमाइज करने का, हम 0 से उठाकर इसे 228 तक ले आए हैं क्योंकि अभी भी यहाँ नेगेटिव वैल्यू है, यानी ये 228 और अभी इंक्रीज हो सकेगी, इंप्रूव हो सकेगी। इसे हमें करना है और वो प्रोसेस आपको पता है। तो ये डेफिनेटली 228 से बढ़कर ही वैल्यू आपकी आनी चाहिए जो वेरीफाई करेगा कि हाँ आपका सही है। अब प्रॉब्लम यहां खत्म नहीं हो रहा, अगर इवन यहां 0 और पॉजिटिव आ भी गया तो उसके बाद क्या है, आपका मरहला रहता है वेरिफिकेशन का, कि आपको वेरीफाई करना पड़ेगा एक एक वेरिएबल को, एक एक कंस्ट्रेंट को। तो वेरिफिकेशन का तरीकाकार क्या है, मैं यहीं इस टेबल के हिसाब से ही हर इक्वेशन को मैं आपके लिए वेरीफाई करके दिखा रहा हूं कि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा, अगर आप लोगों को याद हो, z इज इक्वल टू 20x1 प्लस 10x2 प्लस 15x3। ठीक, अब z इक्वल्स टू 20, x1 इस बेसिक लिस्ट में है, हाँ है, यहां पड़ा हुआ है x1 आपका। तो x1 की सॉल्यूशन वैल्यू क्या है 57/5, ये वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे, प्लस 10 इंटू x2 बेसिक के लिस्ट के अंदर नहीं है यानी उसकी वैल्यू 0 है, प्लस आपका 15, x3 भी बेसिक की लिस्ट में नहीं है तो वो भी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 1 5, 5 4 20, 4 इंटू 57 करोगे तो 228 आ जाएगा। z इज इक्वल टू 228।
यहाँ 228 आया, और यहाँ भी देखें कि z के अंदर आपका वैल्यू 228 बिल्कुल पड़ा हुआ है। तो ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया। उसके बाद जो हमारे पास फर्स्ट कंस्ट्रेंट थी 3x1 प्लस 2x2 प्लस 5x3 प्लस s1 इज इक्वल टू 55। मैंने स्टैंडर्ड एलपी मॉडल से ली है ताकि आपको अंदाजा हो जाए s1 s2 s3 भी हमारे किसने काम की आ रही है। तो 3x1 की वही सॉल्यूशन वैल्यू हमारे पास 57/5 पड़ी हुई है, प्लस 2x2 बेसिक लिस्ट में नहीं है यानी 0, प्लस 5 इंटू x3 भी हमारे बेसिक लिस्ट में नहीं है 0, प्लस s1 हमारे पास मौजूद है। s1 की सॉल्यूशन वैल्यू आपकी 104/5 ये आपके पास पड़ गया। तो सॉरी ये इज इक्वल टू 55 राइट हैंड साइड। नाउ इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 350 का 150 171/5 प्लस ये 0 प्लस ये 0 प्लस 104/5 इज इक्वल टू 55। तो ये 171/5 प्लस 104/5 इज इक्वल टू 55। इन दोनों को ऐड करेंगे या सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखेंगे कि ये 55 इज इक्वल टू 55, यानी आपका कंस्ट्रेंट ये भी सेटिस्फाई हो गया क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल आ रही हैं। इस तरह से आप हर कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करोगे। जब सब कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई हो गए फाइनल वैल्यूज के साथ, तो हम कहेंगे कि ये हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन है और फीजिबल सॉल्यूशन है। फीजिबल तो होगा ही होगा क्योंकि हम स्टार्टिंग ही फीजिबल से की थी, तो ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन कहलाएगा, यानी मैक्सिमाइज हमने कर दिया। अब ये मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि ये सब्जेक्ट ही है ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन का मकसद हमेशा मैक्सिमम नहीं होता। ऑप्टिमाइजेशन का मकसद होता है कि बेस्ड, अगर हमें मिनिमाइज करना है तो हम मिनिमम वैल्यू को कंसीडर करेंगे कि वो हमारे लिए ऑप्टिमम है या ऑप्टिमाइज्ड है, और अगर मैक्सिमम करना है तो हमारे लिए मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो ऑप्टिमाइज्ड होगी। यानी इसको इस तरह सेंस में भी ले लें कि एक कस्टमर है, एक शॉपकीपर है, तो शॉपकीपर के लिए ये है कि मैक्सिमम प्रॉफिट कमाए, यानी उसके लिए ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगा कि मैक्सिमम प्राइस पर वो बेचे। लेकिन बीइंग अ कस्टमर कि आप बार्गेनिंग कितनी कर रहे हो, यानी आप कितनी मिनिमम वैल्यू पर वो परचेज कर रहे हो, तो ये उसके लिए ऑप्टिमाइज हो जाएगा। तो ऑप्टिमाइजेशन का कभी भी ये मकसद नहीं है कि ऊपर की वैल्यू या नीचे की वैल्यू, नो, ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है, उस हिसाब से ऑप्टिमाइजेशन होगी। तो आई होप कि आप लोगों की रिवीजन हो चुकी होगी पूरे इसके अंदर, क्योंकि हमने कंप्लीट प्रॉब्लम वहाँ क्लास के अंदर भी सॉल्व किया था। यहाँ क्योंकि ये रिपीटेटिव प्रोसेस है तो पूरा प्रोसेस में यहाँ तक ले आया हूँ। पूरा प्रॉब्लम तो नहीं मैं कहूँगा क्योंकि अब आगे स्टेप्स वही हैं। मैंने एक प्रोसेस चला दिया, वो आपको रिकॉल करवा दिया। इन अदर वर्ड्स अब आगे आप लोग खुद इसको सॉल्व करोगे, और इसके अंदर जितना भी ये मैंने इस वक्त तक किया है या आप लोगों ने जो घर बैठे पढ़ा हुआ है और जो कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, तो आप लोगों का ऑनलाइन सेशन, क्वेश्चन आंसर का सेशन जूम के ऊपर होगा। वो आईडी और सब कुछ मैं पासवर्ड आपको कम्युनिकेट कर दूंगा आपके LMS के अंदर ऊपर। ये लेक्चर आपका यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, इसकी लिंक भी मैं LMS के अंदर ही आप लोगों के लिए सेट कर दूंगा, वहाँ से आप एक्सेस कर सकेंगे। तो पहले आपको लेक्चर देखना है, उसके बाद मैं आपकी ऑनलाइन मीटिंग शेड्यूल करूँगा जो आपके क्वेश्चंस और आंसर्स की होगी, और वो वहाँ कम्प्लीटली हम लोग डिस्कस कर पाएंगे पूरा। अब क्योंकि क्लास की स्ट्रेंथ आपकी ज़्यादा है और जूम के अंदर 100 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स नहीं आ सकते, इसीलिए मैं कोशिश करूँगा कि 2 सेशन आपके लोगों के लिए रखूँ, ताकि एक सेशन के अंदर जो स्टूडेंट्स आएंगे और जो दूसरे सेशन के अंदर आएंगे। लेकिन आप लोगों को करना क्या है, जब जूम की मीटिंग आप ज्वाइन करें, लिंक पर जाकर आप सिंपली ज्वाइन भी करेंगे तो ज्वाइन हो जाएगी, ना भी तो आपको मीटिंग आईडी और पासवर्ड मिला हुआ होगा, वो एंटर करके आ जाएंगे। आपको साइन इन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ, काफ़ी स्टूडेंट साइन इन के चक्करों में मीटिंग ज्वाइन ही नहीं कर पा रहे, तो आपको बगैर साइन इन के
सिंपली ज्वाइन अ मीटिंग करना है, ज्वाइन मीटिंग करें, पासवर्ड और अपना मीटिंग आईडी दे दें, आ जाएगा। लेकिन आपका जो स्क्रीन नेम है ये बहुत अहम है। स्क्रीन नेम आप अपना नाम नहीं लिखोगे, आपको कंप्लीट अपना रोल नंबर लिखना पड़ेगा। कंप्लीट रोल नंबर सिर्फ लिखें, क्योंकि वही आपका विजिबल होगा, वही आपकी अटेंडेंस भी इन अदर वर्ड्स कहलाएगी। दिस इज व्हाट ऑल आर द इंस्ट्रक्शंस फॉर योर जूम के ऊपर दूसरा ये है, क्योंकि हम लोग फिजिकली एक साथ हैं नहीं और स्पीकर और माइक के ऊपर है, तो थोड़ा सा डेकोरम बरकरार रखिएगा कि आप लोगों में से हर कोई बीच बीच में ना बोले। एक बोल रहा है तो कम से कम थोड़ा पैशंस रखकर उसको सुन ले। जब वो फिनिश कर ले तो उसके बाद फिर आप में से कोई और बोल सकता है। तो अगर थोड़ा सा एक दूसरे को स्पेस दोगे तो आपकी ये मीटिंग, आपका ये सेशन फ्रूटफुल रहेगा, वरना किसी काम का नहीं रहेगा। दूसरे अल्फाज में ये है कि अगर 5-10 मिनट तक ये डेकोरम अगर हमारा बरकरार नहीं रहता, तो बीइंग अ होस्ट मेरे पास ये प्रिविलेज है कि मैं आप सबको म्यूट कर दूं, यानी आप सबके माइक्स में बंद कर दूंगा, फिर सिर्फ मुझे ही बोलना होगा। तो ऐसी नौबत ना आनी चाहिए। खुदा के लिए आप अपना डेकोरम मेंटेन कीजिएगा और इस सेशन को फ्रूटफुल बनाइएगा अपने लिए, मेरे लिए नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस आंसर्स जो कंफ्यूजन्स होंगे वो आपके होंगे, मेरे लिए नहीं होंगे। सो आई होप कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस और इसका पूरा लेक्चर देखकर आप ऑनलाइन हो जाओगे जूम के ऊपर, और वहाँ पर हम लोग इसकी पूरी डिस्कशन, जो भी आपके कंफ्यूजन्स हैं वो पूरी कर लेंगे इंशाल्लाह। फिर मिलेंगे हम ऑनलाइन, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।